Hello, everyone. Thanks for joining today's live stream. Today, we'll be talking about decoding the Hindu calendar, why festival dates vary in Australia, New Zealand, and Fiji. So, have you ever wondered why Hindu festival dates differ across countries? Dive in as we unravel this intriguing puzzle. In this video, we'll unravel the intriguing puzzle of why Hindu festivals dates differ in countries like Australia, New Zealand, and Fiji. The confusion arises because some temples and priests follow the Indian dates, which cannot be directly applied in these countries. The reason behind this is that the Hindu tithis, which is the lunar days, are geocentric, meaning they begin at the same instant all over the world. However, local parameters like sunrise, sunset, moonrise, moonset, along with specific festival rules, influence the observance of these festivals. Each festival has a separate rule. For instance, Mahashivaratri is celebrated when Amavasya Maga, Maga Masa, Krishna Paksha Chaturdashi, which translates to Purnimas Falguna Masa Krishna Paksha Chaturdashi as per the North Indian calendar. And it prevails during the Nishita Kala, which is midnight. Join us as we delve into these complexities and shed light on the intricacies of Hindu calendar. Let's first invite Pandit Mahesh Shastri ji. Namaste. Pranam, Radhe Radhe. Pandit Mahesh Shastri ji, who is Panchang Siddhanti of mypanchang.com, and he also prepares Panchang calendars for about 90% temples in the United States. Next, let's invite Pandit Vishal Sharma ji. Namaste, Vishal ji. Namaste, Jai Shri Sitaram, Radhe Radhe. Vishalji is from Melbourne, Australia, and originally he is from Fiji Islands. He is a Karmakand Purohit. He is also electrical engineering manager by profession. Next, let's invite Pandit Snehal Thakur. Namaste, Snehal ji. Namaste, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Jai Sanatan. Jai Sanatan. Pandit Snehal Thakur is from Adelaide, Australia. He is originally from Gujarat, India. He is a president of Sanatan Cultural Organization, South Australia. He is also Karmkand Purohit and Kathakar, and he is also an accountant by profession working for the local government. Next, let's invite Saiji, Australia, who is also originally from India. Namaste, Saiji. नमस्ते Namaste. सभी को नमस्ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय Saiji is the National President of Hindu Council Australia, the peak body representing Hindus in Australia. He is also a board member of Spiritual Care Australia, and he is heavily dedicated towards community service. Next, let's invite Pandit Krishnil Tiwari ji, who is from Fiji Islands. Namaste, Krishnil ji. Namaste Krishna ji. Ram Ram. Krishnil ji is also Jyotish Karmkand. He is the National General Secretary of Sri Sanatan Dharm Purohit Brahman Mahasabha in Fiji. He is also National Secretary of Sri Sanatan Dharm Pratinidhi Sabha of Fiji. He also teaches accounting and finance at the University of South Pacific. All right. So let's get started with today's topic, which is going to discuss the Mahashivaratri dates in Australia. So before we get started, I want to give a quick idea on how Maheshi and I, who are affiliated with My Panchang, how we calculate the dates. So for Mahashivaratri, we consider the Magha Masa, Krishna Paksha Chaturdashi, Nishita Kala Vyapini, which is the 8th Muhurat of the night. If it's the North Indian calendar, we follow the Falgun Krishna Paksha Chaturdashi Nishita Kala. For this, we do refer book sources which is from Shiva Agama, Vaishnava Agama, Devi Agama, Tithi Nirnayam, Dharma Sindhu, and Nirnay Sindhu. So, do you also have sources that you refer to, Vishalji? Sorry, Shruti, I just missed out a bit because there was a network event. Okay, so my question is, do you, when you calculate any kind of festivals for the temples, do you consider any book sources like we do at My Panchang? Thanks, Shruti, and namaste and, to everyone and all the viewers. Yes, indeed, we when we do Panchang calculation, we do use Nirnay Sindhu, Dharam Sindhu, and some level of reference to Vrat Raj. And if we need clarification, then we do end up opening Purans. Mhm. But Dharam Sindhu, Nirnay Sindhu is the most
one we use most of the times. Awesome. Snehalji, do you have anything to add to that? The same as like when Tithi comes and when there are this kind of misunderstandings or when to celebrate, and people just follows the what are the dates of Tithis in the India, and they just tend to follow those dates. And we do receive a lot of phone calls that when is Diwali or when is the actual Shivratri. So that's where we go back and obviously refer all these books that Vishal Bhai just mentioned. Okay, awesome. So let's get started with why we celebrate Mahashivaratri. I wanted to give a quick context setting here for our viewers. So let's see. It is an extremely old ceremony that we celebrate. It is considered as the night when Lord Shiva is said to have performed the Tandav Nritya, which is the dance of premortal creation, preservation, and destruction. He drank the poison that came while churning ocean, which is Samudra Manthan for us. The marriage of Lord Shiva and Parvati also happened on this day. This day is about overcoming darkness and ignorance. हम लोग यहाँ पे रात को 4 प्रहर की पूजा करते हैं. We perform puja throughout the night, and we have full night vigil with puja, bhajan, and kirtan. That is how we celebrate Mahashivratri. So let's talk about the dates in question for the Australia and Fiji areas. So let's go to the next slide. So this is how our calculations based on the books that we refer came out to. So do you have any questions, Vishalji, Snehalji, Krishnilji? No, I'm okay at this stage. I'm good as well. Krishnil just joined in. Probably he lost connection. Are you able to? I think Krishnal ji is having some network issue. Yeah, it's Yeah. Fiji. Yeah, We do Yeah. have the problems there, but problem. anyway, we'll continue. I think we are Mhm. good with the dates that's shown on the Yeah. screen. Yeah. So for Western Australia, Perth, it's 8th March. There is another Perth in, I think, Tasmania or something. That might be 9th. So make sure when you use Perth is always Western Australia one. For Northern Territory, Darwin, it's 9th March. For Southern Australia, Adelaide, it's 9th March. For Queensland area, especially Brisbane, is also 9th March. Well, entire Queensland, I will say. And NSW Sydney will be on 9th March. Australian Capital Territory, Canberra will be 9th March, and Victoria, Melbourne also 9th March. And also New Zealand, Auckland, Fiji, Nadi, Sua, both will be on 9th March. So the way it works is in United States we have uh, basi- so Melbourne is what we call, if you have seen the English movies where you say the fighter plane cannot like turn back. So it's like 0 by 0 line is Perth. From that it goes like 9th March. For Okay. everybody else in the world, like starting from Hawaii, United States, Canada, Europe, India, Pakistan, Bangladesh, Singapore, Malaysia, and Perth is all 8. And Perth is 0 by 0 line. And it's all others will be 9th March. Okay. So let's set a little bit of context on why Perth is coming out to be 8th March, I guess, and why the rest of the cities seem to be going 9th of March. So to set some context, Maheshi, what text did we refer for making this calculation? We usually see whenever we have some festival, we decide as a Panchang Karta, I am a Panchang Siddhanti. So Agama, Panchanga Agama is my specialty. So we refer to all the Agamas, default Agama we use. For Shiva related festival, we use Shiva Agama. Even for Muhurta related, for that we use Shiva Agama. For Muhurta related Vishnu or festival related for Vaishnava festival, we'll use Vaishnava Agama. For example, Muhurta Chintamani says you cannot use Mesh Lagna for a temple ceremony or graha pravesha or anything. But Shiva, one of the Vaishnava Agama, uh, especially Pancharatra Agama, called Hayashirsh Pancharatra Agama says Sri Bhagwan Vacha, and then he says Mesh Lagna is okay, good.
So that's why we use the Mesh Lagna. And the same way in the Ram Janmabhoomi Pratishthapana, they use Mesh Lagna because they are Ramanandi Sampradaya. Ramanandi Sampradaya will use Pancharatra Agama for this. So Agama tells you about the what, when, where, and how those puja process will be done. And then the puja process would differ from Agama to Agama. For example, a Vaishnava priest following Pajratra Agama and following Vaikhanasa Agama would be a bit different. So likewise, so here we use Shiva Agama, and then but this mantra we have quoted is from Dharma Sindhu. It says Atha Shivaratri Sa Nishita Kali Vapini Grahya Nishitastu Ratre Ashtamo Muhurta Ityuktam. So Ashtama Muhurta is the best because in the day there will be 15 muhurta which will be from sunrise to sunset, and from sunset to next day sunrise there will be another 15 muhurta. So the middle of the day will be the 8th muhurta in the day will be the madhyana kala, 7 before, 7 after. So After. the middle one is the madhyana kala. Likewise, in the night one you calculate the sunset and sunrise, that you will get ratri mana, and ratri mana you divide by 15, so that will get a muhurta for each one. Then you go on adding into the sunset, so 7 times you add it, that will give you the ending time of the 7th muhurta. And then the beginning of the 8th muhurta, you add that muhurta duration that we got by dividing it by 15, you add into that, you get the 8th muhurta ending time. So the thing is chaturdashi has to be prevailing on that day. So I have clarified this in next slide in plain English language, because most of people, our viewers, may not know Sanskrit. All these Yeah. priests are very capable of understanding Sanskrit, so they know this, all these priests. So but for other general public, we say like Nishita Kala Vyapini is important. Remember the first verses. If it prevails on the both days for full. So for example, if the Chaturdashi begins prior to the on, like it is prevail on the both the days, but it prevails on the first day before the Ashtama Muhurta, and after on the next day after the Ashtama Muhurta, then you take the second day. But if it prevails on the, let's say, on both the days in a way that it starts in between the Ashtama Muhurta and ends on the next day in between the Ashtama Muhurta, then you take the second day. Okay. So if it prevails completely on the first day and one part on the second day, so if it prevails, if it starts before the Ashtama Muhurta and ends in between Ashtama Muhurta but not crossing the Ashtama Muhurta, then you take the first day. But if it prevails completely on second day and one part on the first day, like first day starts in between the Ashtama Muhurta, then you take the second day. But if it doesn't prevail on any day, on Nishita Kala, then you take the obviously second day, because that is Suryodaya Kala Vyapini, and Tithi duration is roughly 19 hours to 26 to 27 hours. So that way, if it starts past Ashtama Muhurta on the first day, you add roughly 19 hours, say shortest one, it will definitely cross the Pradosha Kala. So that's why some book write, if it is not that, then take Pradosh Kala. But that's the reasoning behind it, because minimum Tithi duration is 19 hours. Why it is so like that, 19 to 26? Why not 24 hours? Because the earth orbit around sun is very elliptical. You see, it is not. So it is the way we see from the earth, where the sun is in the ellipse, from the point of view the earth. So it may take more time. If it's up here, so it has to go up here to cross the 12 degrees, remember. And uh, if you take everything with the changing zodiac, you will not have a much of a problem. You will have still some problem, but we use fixed zodiac. We change the changing zodiac to fixed zodiac. So that's why we have this thing. So we have a 19 to 26 roughly Yeah. uh, calculation, 18 point something to 26 point something, so 27, 26, 27. Anyway, so so this is the basic golden rule compiled from the all the agamas, and most acharyas agree on it.
Right. So at this point, I do want to let our viewers know as well if they have any questions, please feel free to post it. We'll take everyone's questions and we won't be skipping anyone. So if you have any questions, please post it, and we'll take it here. Meanwhile, for the panel that we have here, we just went through the rule itself and then its translation in English. Does anything seem not correct or confusing or anything for anyone? I think as Shastriji said, Panditji said, uh, explaining that in Sanskrit may be difficult for the some viewers. So that explaining in plain English, which is that slide over here, and it would be beneficial if because Saiji here from Hindu Council of Australia, if we can have something on the our Facebook pages of the organizations or website, then it will help the public who are going to go there to view the Muhurat for those festivals that they're going to celebrate. So I think if we can have a simple slide like this on our Facebook pages and on the website with a bit of explanation, that would help the viewers. We will send you the PDF file. This the whatever the presentation we have, we will send you the PDF Okay. file to Vishal ji, and then I would love to be in connection with all of you. So I will give Yep. you my WhatsApp number after the show in the Yep. private chat, so you can add me into that. I don't want to put my WhatsApp number everywhere up here. ना ना Okay. बहुत बहुत धन्यवाद है पंडित जी and thanks. I think probably यही I think it'll be good if we put a little bit of Hindi context here and for the viewers Yes. who are listening and maybe understanding Hindi better. तो Mhm. पंडित जी correct me, आप अगर इस पे थोड़ा हिंदी या में भी श्योर। बोल दोगे 1 मिनट के लिए। तो हिंदी में क्या मैं आपको बताता हूँ। निशित मतलब क्या होता है ना, तो सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता है ना, उसको डिफरेंस लेते हैं ना, तो उसको रात, उसको दिनमान कहते हैं। ओके, सो दिन के 15 मुहूर्त होते हैं और रात्रि के 15 मुहूर्त होते हैं। अभी रात्रि में क्या करते हो ना, दिन के तो 15 मुहूर्त आपको मिल गए। अगर आप दिन का लेंथ 12 घंटे का मान लो, लेट्स से it never happens anywhere in the world, the day except on the day of equinoxes, but otherwise you will have a more or less, समर में ज्यादा दिन का लेंथ बढ़ता है, रात्रि कम होती है। तो उसके हिसाब से आप सपोज 12 घंटे का मान लो, तो उसके अंदर 12 घंटे का दिनमान होगा, डिवाइड बाय 15, तो कितना हुआ 48 मिनट्स उसका उसका मुहूर्त का हुआ। और मुहूर्त को 2 से डिवाइड करो तो 24 मिनट क्या आएगा, एक घटी होगा। तो 2 घटी मिलाकर, जिसको हम साईं जी साउथ इंडिया में गडियालू भी कहते हैं ना, you know, like right, in Tamil also nadi, what we call nadi in Tamil, and in Telugu we call it gadiyalu or gati, you know. So that is gati. So 2 gati ka becomes 1 muhurta. Likewise for the night, रात्रि के टाइम पे हम दूसरे दिन का सूर्योदय और अगले दिन का सूर्यास्त को हम ले लेंगे ना डिफरेंस, तो उसको रात्रिमान कहते हैं। उसको भी 15 से डिवाइड कर देंगे ना, तो हमें एक मुहूर्त का साइज मिलेगा। और उसमें क्योंकि 15 है ना, तो 7 आगे 7 पीछे, तो कितना हुआ 14, तो बीच वाला मिल गया, तो वो हो गया मध्य रात्रि का मुहूर्त। मध्य उसको रात्रि निशित काल भी कहते हैं, निश्चित कालीन, हाँ, और उसको कभी कभी दिवाली के मुहूर्त के अंदर महानिशित काल भी कहते हैं, कहते क्योंकि सेम, उसको सेम है महानिशित काल भी। सो उसमें नियम क्या है ना, कि शिवरात्रि का कब सेलिब्रेट की जानी चाहिए। एक्चुअली माघ मास कृष्ण पक्ष जो अमावस्या जो कैलेंडर है ना, हमारे जो कैलेंडर है ना, उसमें मास 2 प्रकार से रिकॉग्नाइज होते हैं ना। एक तो फ्रॉम वन अमावस्या टू अनदर अमावस्या, और जो साउथ में, जो नॉट इवन साउथ, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, यू नो, तमिलनाडु, यू नो, केरला, दे यूज इट। और बाकी जो हिंदी बेल्ट जो है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यू नो, वो सब जगह पे पूर्णिमा, पूर्णिमा टू वन पूर्णिमा, तो वो एक मंथ होता है।
तो उसके अंदर शुक्ल पक्ष कॉमन होता है दोनों के अंदर। सो माघ शुक्ल पक्ष कॉमन होगा, मगर जब भी हमारा આપણા ગુજરાતીઓનો વેન અવર गुजरात महाराष्ट्र का जब भी माघ कृष्ण पक्ष होगा, दे विल कॉल इट एज अ फाल्गुन कृष्ण पक्ष। फाल्गुन है कृष्ण तो पक्ष। एक ही, और कुछ बात नहीं है। तो उसकी जो चतुर्दशी तिथि होती है ना, वो कब होनी चाहिए? हर एक का एक ना एक समय होता है ऑब्जर्वेंस का। अगर मेरा बर्थडे है तो मैं क्या करूंगा कि आश्वायुजा जो आश्विन मास है कृष्ण पक्ष, और नॉर्थ इंडिया में उसको कार्तिक कृष्ण पक्ष कहते हैं ना, उसकी एकादशी के दिन जो सुबह वाली तिथि को मैं लूंगा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की तिथि भी उसी तरह से मनाई जाएगी, सुभाष चंद्र बोस की भी तिथि उसी तरह से मनाई जाएगी। मगर जब हम भगवान की बात करते हैं, राम जी, शिव जी, कृष्ण जी और गणपति जी, तो उन जो समय पे उनका प्रादुर्भाव हुआ है और जो समय पे जो इवेंट हुई है, उस समय के अंदर, उसी उपलक्ष्य के अंदर हम सेलिब्रेट करते हैं। तो शिवरात्रि का महत्व है निशीथ काल व्यापिनी, तो चतुर्दशी उसमें होनी चाहिए उस समय पे। वो अगर क्या होता है ना, तो निश्चित काल में वो लेनी चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या आता है ना, कि हमारी तिथि ने इंग्लिश डेट के साथ में मैरिज नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है ना, कि देर आर सो मेनी कैलमेनेक्स अवेलेबल जो मार्केट में है ना, वो इंग्लिश डेट बोलते हैं ये तिथि है। तो भारत में तो लोगों को मन में ये मिसकॉन्सेप्शन है ना, कि भाई चतुर्दशी इसी तारीख को आएगी पूरी दुनिया भर में। ऐसा नहीं है, नहीं है। वो कैसे होगा? वो इट्स एन इवेंट, सेलेस्टियल इवेंट। जैसे आप वर्ल्ड कप का इवेंट देखते हो ना, भी आप लोग ऑस्ट्रेलिया में हो ना, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच है, यहाँ पे 10 बजे इंडिया में होता है। तो आप कितने बजे देखते हो ऑस्ट्रेलिया में? 5 या 4 घंटे उसके डे लाइट सेविंग के हिसाब से आगे होगा। आगे होगा ना। तो हमको पीछे देखना हमें पीछे देखना होता है, राइट। सो उसके हिसाब से वो इट एंड्स एंड स्टार्ट्स एट द सेम इंस्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो मगर कब शुरू होती है? इट कैन स्टार्ट एट सनराइज, इट कैन स्टार्ट एट नून, इट कैन स्टार्ट जस्ट बिफोर द निशित काला, इट कैन स्टार्ट मिनट बिफोर निशित काला, इट कैन स्टार्ट ड्यूरिंग द सनसेट ऑल्सो, इट कैन एंड एनी टाइम, कभी भी खत्म हो सकती है। अभी उसमें जब भी खत्म होती है तो एक तिथि का ड्यूरेशन 19 घंटे से 26-27 घंटे तक मैक्सिमम होता है, कम से कम 19 घंटे, उससे तो कम नहीं होगी, गारंटीड है। ओके, सही है। और प्रॉब्लम क्या होता है ना, अभी ये 2 दिन ले लिए हमने, 2 दिन व्यापिनी है। अभी 2 दिन में क्या होता है ना, कि निशीत काल का जो दिन का रात्रि का 8वां मुहूर्त है, उसके 2 मिनट पहले से शुरू हुई, लेट्स सी। और दूसरे दिन निशित काल समाप्त होने के 2 मिनट के बाद में समाप्त हुई, 1 मिनट, और उसी समय पे समाप्त हुई, लेट्स सी, 1 सेकंड के बाद में। तो दोनों दिन निशित काल व्यापिनी होगी। तो उस समय पे दूसरा दिन लिया जाएगा। मगर ऐसा हुआ ना कि देखो, पहले दिन जो 8वां मुहूर्त है ना, उसकी शुरुआत और उसके अंत का जो टाइम के बीच में शुरू हुई, और दूसरे दिन के जो 8वां मुहूर्त है उसके बीच में खत्म हुई, तो भी दूसरा दिन लिया जाएगा। मगर ऐसा शुरू हुआ ना, कि पहले दिन निश्चित काल के पहले शुरू हुई, और दूसरे दिन निश्चित काल के बीच में, मतलब शुरू और बीच में खत्म हो गई, जिसको एक देश भी कहते हैं ना। देश मतलब ये नहीं कि कंट्री, देश का कंट्री, मतलब हाँ, नहीं, ये जो देश है ना, इतना देश, उतना उतना विभाग उसके अंदर है। ग्राफ ऑफ इट, या हाँ, उसके अंदर, तो उसको एक देश व्यापिनी कहते हैं ना। तो उसके अंदर एक देश के हिसाब से तो वो पहले दिन होगी, क्योंकि पहले दिन पूर्ण व्यापिनी है। अगर सेम दिन पहले दिन निशित काल के बीच में शुरू हुई और दूसरे दिन पूरे निशित काल में है, बाद में समाप्त हुई, तो दूसरे दिन आएगा। अगर कभी कभी ऐसा हुआ ना, कि पहले दिन निशित काल के बाद में शुरू हुई और दूसरे दिन निशित काल के पहले समाप्त हो गई, तो क्या होगा? तो भी ये दूसरे अपना दिन होगा। ये अपना क्योंकि कैसे पहले दिन, क्योंकि उसका कारण क्या है ना, तिथि का मिनिमम ड्यूरेशन कितना है? 19 घंटा। सपोज 19 घंटा आप मान लो, राइट। तो चलो निश्चित काल खत्म होता है ना, तो 12:50 को लेट्स एज्यूम, तो 12 तो 1 बजे शुरू हुआ रात को, लेट्स से ये चतुर्दशी तिथि,
तो 1 + 19 कितना हुआ? 20। 20 8 बजे। तो 8 बजे तक तो 8 सनसेट के पहले हो ही सनसेट जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो के जाएगा। अंदर भी, हाँ क्योंकि ये जो तिथि आती है ना, वो इक्विनॉक्स जब भी होता है ना उसमें आती है। मतलब हम्म, सनसेट कभी 7:30 बजे के बाद में नहीं होगा, ऑलवेज हाँ पहले होगा, पहले गारंटीड होगा। है। हाँ तो इसके लिए वो अच्छा। लोग लिख देते हैं प्रदोष काल व्यापिनी भी चलेगी, बट दैट इज द रीजन। हाँ दैट इज करेक्ट। एक और इसमें एक क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर 8 को कोई प्रीस्ट या जैसे पंडित जी कोई पूजा करवाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो पूजा रखते हैं, तो जब हम संकल्प करते हैं पूजा का, प्रमुखतः शिवरात्रि के लिए ही पूजा का आयोजन किया गया है, और उसका जो संकल्प करते हैं, तो आपका क्या व्यू है उसमें कि जो संकल्प में वो फिर त्रयोदशी प्रदोष व्रत का ही संकल्प कराना चाहिए ना? वो शिवरात्रि तो त्रयोदशी दूसरे दिन है, शिवरात्रि का उसमें संकल्प नहीं नहीं कराना होगा, चाहिए। नहीं हाँ, कराना चाहिए। तो ये व्यूवर्स को एक इन्फॉर्मेशन की, अगर आप 8 मार्च को शिवरात्रि का पूजन करके अगर सेलिब्रेशन करते संकल्प करते हैं, तो वो वो मान्य इस तिथि के हिसाब से नहीं गिना जाएगा। ठीक है ना? अनलेस यू आर इन पर्थ, हाँ, अनलेस अनलेस यू यू आर आर इन इन पर्थ, पर्थ। बाकी अनलेस अगर यू आर इन पर्थ पर्थ। में नहीं हो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हाँ, में, बाकी सब जगह पे हो, तभी वो संकल्प गलत है। हाँ, तो मतलब आप अगर होली के दिन हाँ, दशहरा मना रहे हो, मना रहे हो, हाँ। तो होली अगर के दिन शिवरात्रि के दशहरा। पूजन का संकल्प करना है, तो एडलेड, सिडनी, मेलबर्न वगैरह जो सिटीज हैं, उसमें मस्ट सेलिब्रेट ऑन 9th टू सेलिब्रेट द शिवरात्रि अकॉर्डिंग टू द तिथि एंड संकल्प एंड डूइंग द संकल्प। और लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन ये है ना, हाँ। कि लोग कहते हैं कि भाई चलो ऑस्ट्रेलिया तो आगे है ना, तो पहले हम्म। होना चाहिए ना। ये वैसा नहीं है ना। तो ये आप फिजी में भी है, ऐसा है। तो फिजी में लोग क्रिकेट, यस, तो उनको मैं यही कहता हूँ, क्रिकेट मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इंडिया में हो रहा है, सुबह में हम्म। 9 बजे होता है। हम्म। तो आप अगर आगे लोगे 5.5 घंटे, तो कोहली आपके लिए खेलने के लिए आने वाला नहीं है। और रोहित शर्मा हम्म। तो पता है ना, वो तो सीधा बोल देगा आप अपने घर पे जाके खेलो। राइट, इट विल बी ऑलवेज 9 + 5 hours 30 minutes फॉर योर हम्म। टाइम जोन। वो हम्म। उसी समय पे देखना पड़ेगा। तिथिज आर एग्जैक्टली लाइक दिस। दिस यस, तो आप करेक्ट। अगर इंडियन पंचांग भी इस्तेमाल करते हो, तो उसमें हम्म। आप 5.5 घंटा जो आपका डिफरेंस है ना, वो ऐड कर दो उसके अंदर। हाँ। और व्यूवर्स को बताइए पंडित जी कि जो माय पंचांग है, उसके एप्स हैं या वेबसाइट में जाकर वो देख सकते हैं कि कौन सी सिटी में कब कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। हाँ जी, आप है ना m.mypanchang.com पे भी जा सकते हो, m.mypanchang.com। उससे वो, इट्स अ मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, क्योंकि हम्म। जो भी जितने ऐप होते हैं ना, वो बैकएंड में मोबाइल फ्रेंडली वेब मोबाइल पेज फ्रेंडली बना बना। के उसके अंदर फ्रेम के अंदर डाल देते हम्म। हैं। तो हमने सीधा m.mypanchang.com किया है, ऑटोमेटिकली लोकेशन सेंस होगा। अगर लोकेशंस कभी-कभी चेंज डिटेक्ट नहीं करता, तो यू कैन ऑलवेज सिलेक्ट द ऑस्ट्रेलिया, और हम्म। आपका जो सिटी है ना, वो सिलेक्ट करके कर सकते हो। हाँ। तो उसके हिसाब से वो आ जाएगा, पूरा लिस्ट आ जाएगा। अगर आप मास्टर वेबसाइट पे जाते हो www.mypanchang.com, तो आपका लोकेशन सेंस करके मास्टर पेज पे ही आपका कैलेंडर दिखा देगा आपको लिखा जाएगा। ए- उसके हाँ। अंदर। ए- एक बात है पंडित जी, the one thing I want to make maybe say here is that sometimes people has a misconception like they you'll use the panchang that is printed in India, हम्म। like for example Kashi Panchang or Mahabir Panchang, and they will directly use it and say, oh, and they will call the priest in India to say when is Shivaratri, and they will just open that big long Panchang and they will say, oh, ye to apna 8 hi likha hai, it's 8, no, and they will say right, because they don't realize that staying outside India, this Panchang has to be converted to local time zone, हम्म। and that's I the would, biggest confusion. yes, see, the problem is ये सब पंडित लोग ज्ञानी है पूजा पाठ में, कोई ना नहीं है। मगर मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि आप आपके फैमिली डॉक्टर को कहेंगे कि मेरा ओपन हार्ट सर्जरी कर दो, मेरा किडनी स्टोन हम्म। निकाल दो, नहीं ना। सो नहीं कहोगे। अगर आपको शिव जी की पूजा करनी है, यू विल नॉट गो टू वैष्णवा प्रीस्ट, डेफिनेटली ही कैन डू इट, बट यू विल गो टू हम्म। शिवा प्रीस्ट, राइट? जो शैवा है, जो उसको हम्म। पूरा आगम उसको पता है। आपको पता है, जब ये शिवरात्रि की पूजा होती है ना, तो महान्यास पूर्वक रुद्राभिषेक होता है। होता उसमें है। सबसे डिटेल है ना, वो कौन सा है पता है? हम्म। रावणोक्त रावण। महान्यास हाँ। प्रयोग है, मान रावणोक्त लिया। महान्यास प्रयोग है।
तो 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 यू विल गो टू द स्पेशलिस्ट ना। मैं मेरे हम्म, पैर के डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा ना कि भाई यार इतना तो पैर का तुम खोलते तो हो, मेरा हार्ट भी खोल के फिक्स कर दो, हम्म, राइट? सो आई वुड से दे शुड कनेक्ट द जो पंचांग सिद्धांति जो है ना, जिसने वो हम्म, प्रिंटेड पंचांग बनाया है, उसको कांटेक्ट करना हम्म, चाहिए इंस्टेड ऑफ हाँ, कॉलिंग द लोकल प्रीस्ट। दे आर वेरी गुड correct, कुंडली बनाने हाँ, के लिए, वो सब हाँ, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ये स्पेशलिस्ट फील्ड है ना। सो आई और एग्री। मैं एक और आप लोग तो जानते हो क्योंकि आप लोग वेस्टर्न कंट्री में रहते हो, हम्म, मतलब ऑस्ट्रेलिया वो सब उसी कैटेगरी में आता है। तो आप लोगों को तो डे इन डे आउट उसको आपको डील करना पड़ता है, आप लोग हम्म, ज्ञानी हो, यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, और आप लोगों को हम्म, तकलीफ होती है, ओ हमारा पंडित जी इंडिया में ये कहता है, ओके। सो द प्रॉब्लम इज यू शुड आई वुड से योर लोकल प्रीस्ट जो भी है, जो ज्ञानी पंडित जी है आपके लोकल एरिया में, उनको आपको बिलीव करना चाहिए बिकॉज दे हैव स्टडीड वेरी वेल। और मैं तो यही कहूंगा, और बाकी का जो है ना कि जो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, विजिट mypanchang.com। अभी दूसरा मैं कहूंगा कि जो इंडिया वाले जो प्रिंटेड पंचांग है पूरी दुनिया के लिए नहीं, क्यों नहीं बनाते, क्यों बनाएंगे भाई? खर्चा कितना होगा पता है, और उसके कस्टमर कितने होंगे? हाँ, वही है। हम जब भी इंडिया से न्यूज़पेपर प्रिंट होता है ना, और जो मैगजीन इंडिया टुडे और ब्ला 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 जो भी है, कितने लोगों ने लिया यहाँ पे? हम्म, वो क्यों प्रिंट करेंगे आपके लिए? खर्चा कितना होता है? मैं 90% टेम्पल्स के लिए कैलेंडर बनाता हूँ। इट इज लाइक इट इज प्रिंटेड कैलेंडर लाइक दिस। तो पता है ऐसे कैलेंडर प्रिंट करने के लिए एक कॉपी को $2 लगते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, $2 से $3। अगर कॉस्ट बढ़ गया तो अभी ये जो है ना, मीनाक्षी टेम्पल का है, इसका पेपर ठीक है तो इसका कॉस्ट ज्यादा होगा। तो लाइक और ये है शिवा विष्णु टेम्पल का भी है कहीं पे मेरे पास, और ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स का पंचांग है, तो ये भी काफी इसकी कॉस्ट होती है। वो ये बुक प्रिंट करने को महावल्लभा गणपति टेम्पल को इसके पीछे $7-8 लगते हैं प्रिंट करने के लिए। वो हर एक सिटी के लिए बनाने जाए तो कितने प्रिंट करेंगे? इफ दे डू करेक्ट। बल्क देन देयर कॉस्ट विल बी लो। यू सी, इफ दे प्रिंट बल्क, मगर पूरा दुनिया में एक तो नहीं है ना, हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं है हम्म, ना। इफ यू यूज इंडियन कैलेंडर अब्रॉड मीन्स यू आर निग्लेक्टिंग द ग्रेट सेजेस लाइक भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वो सब, मतलब कि पृथ्वी फ्लैट है वो समझते हो, पृथ्वी हम्म, फ्लैट नहीं है। इफ यू लुक एट माय, मेरा जो भी प्रिंटेड पंचांग जो होता है ना, उसमें पहले ही लिखा होता है अर्थ इज नॉट फ्लैट। As a result, Hindu calendar cannot be used everywhere in the world. You have to convert to the local time zone. लोकल, और करेक्ट। उसमें पहले से ही मैंने महर्षि वशिष्ठ का मैंने मंत्र डाला है ऊपर। जो महर्षि वशिष्ठ का मंत्र यही मैंने डाला है, यत् यस्मिन् पक्षे यत्र काले येन दृग् गणितकम दृश्यते तेन पक्षेन कुर्यात् इत्यादि निर्णयम। ये जो महर्षि वशिष्ठ का जो मंत्र हम्म, है, आप देखते हो ना, वो हम्म, मतलब यही महर्षि वशिष्ठ जो कहते हैं कि जो आप जहां पे हो उसके हिसाब से, आपको देशांतर के हिसाब से आपको तिथि, सेलिब्रेशन, हाँ, फेस्टिवल और मुहूर्त सेलिब्रेट करना आपको लेना चाहिए। तो जो चाहिए। लोग कहते हैं कि इंडिया का चलेगा, वो क्या महर्षि वशिष्ठ से बड़े हैं क्या? I हम्म, would like to ask them questions. They are not. For all due respect. So मेरा बीच में ही अभी जो राम मंदिर का जो मुहूर्त था ना, किसी ने कहा था कि गलत है, मेष लग्न में नहीं हो सकता क्योंकि मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है, डॉक्टर बीवी रामन ने भी कहा। तो मैंने कहा विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, I will, whenever I need to find a muhurta for temple, I will follow the agama, because agama says Sri Bhagavan Uvacha हम्म, and says Mesha Mithuna Uttama. So when Bhagavan says, Sri Hari says Mesh Uttam hai, so I would not say BV Raman as the more authentic information than Sri Hari. दैट्स राइट। So same है, तो थैंक मैं यू। आगम फॉलो करता हूँ। Yeah. Maheshji, I'll also like to add a few things here with what you said. I think you and I have exactly discussed the same question in one of the past videos, that why you cannot follow the one in India all over the world. And simply put, it's because your location now is different. जो हमारी प्रणाली है, जो पंचांग है, वो लिखा जाता है और based on wherever you are in the world right now.
तो अगर because it also accounts for sunrise in wherever you are, sunset wherever you are, moonrise, moonset, all of these things matter in Panchang, which means that if you start following from India, it will be more like तुम इंडिया के सूर्यास्त और सूर्योदय और चंद्रोदय की बात कर रहे हो. तो इसीलिए वो it is extremely scientific and extremely mathematical, with very clear rules. And Pandit Mahesh ji and I have exactly discussed the same question in one of the past videos, where we have answered this कि क्यों नहीं कर सकते वैसे celebrate. So that said, it comes down to the same thing. You have to follow the local mathematics and the local calculations for Panchang. And if you go to mypanchang.com, I think it takes in your current location already, and it will give you all the calculations that you need. And we will try to link up here the Okay, good. video where Shruti is talking about. Yeah. If Yeah. you will look into my channel, youtube.com @my panchang, you will see basics of panchangam. I will request everybody to follow that one. That is in plain English. अगर आपको हिंदी में चाहिए तो श्रुति और मैंने और एक वीडियो किया है, तो वो पूरा हिंदी के अंदर है, बीच में इंग्लिश के अंदर है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो. 2-3 वीडियो हैं उसके अंदर, विदेश और उसके अंदर, और भी ठीक. 2-3 वीडियो हैं. महावल्लभा गणपति टेम्पल न्यूयॉर्क की यूट्यूब चैनल पे जाइए. वी डू पंचांग सदा एवरी ईयर एट महावल्लभा गणपति टेम्पल न्यूयॉर्क. तो वहां पे भी आप जाके उनकी यूट्यूब चैनल में भी काफी आपको पंचांग रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, वेर वी हैव डिस्कस मुहूर्ता, पंचांग, द सेम थिंग ओवर एंड ओवर. And let me tell you, Mahawallabha Ganapati Temple is the first temple of the United States. Okay, that's excellent. So overall, we request our viewers sitting in Australia, except the Perth, New Zealand, and Fiji, to follow these guidelines and celebrate the festival according to the place that we are sitting. So yeah, शिवरात्रि जो है वो 9th March 2024 को हम सेलिब्रेट करेंगे, सब साथ में भगवान महादेव का उपासना करेंगे. तो यही संदेश इस वीडियो के माध्यम से हम देना चाहते हैं. और आगे मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा हाँ जी. Yeah. क्या है. ओके, I सो was लेट्स gonna टेक. say, यस, श्रुति, गो अहेड. yeah, I was going to say that let's consider one of the cities, so that we know like what the clear calculation is. So yeah, Mahesh, please continue on explaining Adelaide. So let's start with the Adelaide Mahashivaratri calculation for Adelaide, Australia. So Australia, if you look in the first blue one, Adelaide, Australia calculation from mypanchang.com, March 8th sunrise is 7 o'clock 10 minutes and 15 seconds. Sunset is 19 hours 42 minutes and 49 seconds. And March 9th sunrise, it's 7 o'clock 11 minutes and 6 seconds. So we have established that. And then we know that the Trayodashi Tithi ends in India at 21 hours 58 minutes and 03 seconds. So if you add the Sydney time, here it should be Adelaide, it's just typo here. Adelaide time difference is 5 hours, right? Snehal Yeah, bhai? So Yes, correct. 5 hours. So if you take the 5 hours difference, so Trayodashi ending time will be 2 hours 58 minutes and 03 in Adelaide. If you open the mypanchang.com, you will find exactly that time that the Trayodashi is ending and Chaturdashi beginning. What is the Ratrimana difference between sunset and sunrise? Is 11 hours 28 minutes. So if you add 11 hours 28 minutes to the sunset of 8, which is 19 hours 42 minutes and 49 seconds, you will get the next day sunrise. Basically, that is Ratrimana. Now you divide it by 15. So you will get Ratri Muhurta is 45 minutes. Okay. Then Nishita Kala Muhurta. If you look at the spreadsheet table on the top, you will say 1942, 49 to 20, 28, 41. That is the first Muhurta. And the yellow highlighted one is the eighth Muhurta, which is 25:03:53 till 25:49:45. Eighth Muhurta. So which is like 25 means, see, the Indian date, Tithi day does not end at midnight. Unfortunately, it ends at the sunrise. A Hindu day, say, let's say today is Saturday, it will continue till next day's sunrise. Sunrise to sunrise. So when normal Panchang convention is, if it ends anything after 11:59, that becomes 24. We do not reset the clock.
clock will be reset at the morning time when sunrise, whatever sunrise we will use it. जो घंटे मिनट वाला जो पंचांग होता है ना वही यूज करता है उसमें यही। सो 25 मतलब कि पास्ट मिडनाइट मतलब 9 तारीख को सुबह में 1 बजकर 3 मिनट और 53 सेकंड से लेकर 1:49:45 तक निश्चित काल है ऑन March 8 नाइट एंड March 9 अर्ली मॉर्निंग। ओके, अभी त्रयोदशी doesn't end between this time because it ends at 2 hours 58 minutes and 03 seconds on March 9, which is like 26:58 if you look at, because past midnight, so at 24 to 8, right? So that means March 8, so it ends on March 9, so hence Mahashivaratri in Adelaide is on March 9. अभी जो भी कहते हैं ना March 8 को वो कैलकुलेशन लाके दिखा दे इस तरह से, सिंपल। आई लव कैलकुलेशन, आई लव मैथ। जो That's मैथ very में good. होगा मैं उसको बिलीव करूंगा, बट इफ दे कैनॉट बी That, प्रूव बाय yeah, मैथमेटिक्स, कैनॉट बी प्रूव बाय मैथमेटिक्स। and that is the Panchang is all about. Yes. All about. So let's go to the next slide. So let's do for Sydney also, क्योंकि people all over the Australia and everything, we still have a detailed ones, निहल जी। So Okay. March 8 को 6:50:21 है, और उसी हिसाब से आप देखोगे ना तो महानिशीत काल सिडनी के अंदर 00:42:55 to 1:28:51 है, मगर सिडनी का टाइम डिफरेंस क्या है? 5.5 घंटा। सो कितने बजे खत्म होगी? 3:28:03, मगर ये बीच Hmm. में नहीं आता। सो सिडनी में भी 9th को है। Hmm. समझ गए? सेम कैलकुलेशन। Anji. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। मेलबोर्न में भी सिमिलर रूल होगा। आप देखोगे ना, सनराइज ये है, सनसेट ये Hmm. है, तो आप रात्रि का अष्टम मुहूर्त क्या है? 01:08:42 Yes. 1:54:20, और Yeah. कितने बजे खत्म होता है? 03:28:03। मतलब Hmm. ये 8 तारीख को इसके बीच में नहीं आता। Hmm. तो मतलब मेलबोर्न में भी 9th को है, Hmm. राइट? क्लियर? लेट्स गो टू द ठीक नेक्स्ट है। स्लाइड। नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट्स गो टू द सुवा फिजी। सुवा में भी सेम है, 18:26:03 है उसका सनसेट, और आप देखोगे तिथि है 4:28:03, Hmm. और उसका निश्चित काल क्या है? March 8 को रात को 11:53 Yeah. 50. मिनट्स टू 0040. 00:40:27 AM। वो कहाँ सुबह में 4 बजे, कहाँ रात को 12 बजे, इट डजंट मैच। सो हैंड सुवा Hmm. फिजी नाडी सब में 9th को होगा। सो इसके हिसाब से अगर कोई भी कहता है 8 को है ना, तो कैलकुलेशन ला के दिखा दे, ये हमारे ज्ञानी पंडितों के आगे दे विल एग्री। Well, not agree literally, they will debate, I am sure. So let's go to the next slide. So पारणा कब करना चाहिए? तो लोग कहते हैं ना कि फिर पारणा नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए Hmm. हम 8 तारीख को मना लेते, वो गलत है। क्योंकि आप पूजा उपवास जो करते हो ना, वो पारणा के लिए नहीं करते ना, तो उसमें नियम काफी क्लियर है। इफ चतुर्दशी एंड बिफोर 3 प्रहरा, मतलब चतुर्दशी आपने सुबह में शुरू हुई, लेट्स सी रात को 1 बजे अगले दिन, और दूसरे दिन रात को लेट्स सी 2 बजे खत्म हो गई, मतलब कि Hmm. दूसरे दिन ही होगा 9th को, लेट्स सी एज्यूम दैट्स द केस। मगर तो मतलब दूसरे दिन तो सूर्योदय को भी टच नहीं होती, सो इट्स ओके। मगर अगर दूसरे दिन सूर्योदय को टच होती है तो भी दूसरे दिन ही करना चाहिए। अगर सूर्योदय को टच करके 9 बजे तक खत्म होती है तो भी दूसरे ही दिन करनी चाहिए। ओके, बट इफ चतुर्दशी मोर देन 3 प्रहरा, लाइक रात को 10 बजे शुरू हुई और शाम को 7 बजे खत्म होती है, तभी वो 3 प्रहर से ज्यादा है ना। तो आप 3 प्रहर के पहले जो आपको मध्याह्न संध्या और तर्पण जो होता है ना, श्राद्ध विधि करके जो करना है ना, तभी आप कर सकते हो। ये पारणा का नियम है, सिंपल, क्लियर। एनी क्वेश्चन? That's very clear. That's पंडित जी, very, very. इट्स क्लियर एंड maybe for benefit of the audience, एक यही पर इस पर है कि जैसे हमारा 9th पर जब फिनिश होगा चतुर्दशी, हमारा शिवरात्रि 9 तारीख को होगा, और 9th के नाइट को फास्टिंग करेंगे लोग, पूजा करेंगे, और यानी कि जब
अमावस्या लग जाए नेक्स्ट डे तो अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, वही प्राणा है ना, उसी को हम हम्म, कहते हैं। यही आपका जो रूल बता रहा है। तो जैसे आपने कहा कि ब्रेक ऑफ द फास्ट इज नॉट प्रायोरिटी हियर, इम्पोर्टेंट बिट इज की पूजा सही मुहूर्त में करने तिथि का। करेक्ट। हाँ जी। लोग कभी-कभी फास्टिंग के कारण से कहते हैं कि नहीं, नहीं फास्टिंग चतुर्दशी में ब्रेक करना वो रूल है। नहीं, रूल ये होता है कि पूजा सही समय पर करें, भगवान शिव जी का। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी होता है ना, आप संकष्ट चतुर्दशी में ये प्रॉब्लम मैंने ज्यादा देखा है कि क्या होता है ना कि चंद्रोदय होता है रात को 9:53 को, राइट, और तृतीया खत्म हुई रात को 9:30 को, मगर संकष्टी होगी कौन से दिन, जिस दिन चंद्रोदय व्यापिनी है और दूसरे दिन नहीं है ना, तो उसी दिन ली जाएगी। तो मगर आपको मंदिर में पूजा कितने बजे करनी, वो तो 7 बजे करनी है, भले तृतीया हो, संकल्प में आप संकष्ट चतुर्दशी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। मेरे पास तो अब कोई हाँ, क्वेश्चन बचा ही नहीं नहीं, है। इतना एक्सप्लेनेशन के बाद तो मुझे नहीं लगता किसी के पास कोई क्वेश्चन होगा। There is one question, जी, सही बात। Pandit Maheshi, from the audience here. They are saying is the Vastu Shastra rules, Neeraj ji जो है वो पूछ रहे हैं कि is the Vastu Shastra rules in Australia different than that in India? क्या वास्तु शास्त्र के नियम बदल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं, as इंडिया? नहीं, नहीं, नहीं बदलते, बिकॉज वास्तु एक शास्त्र है ना, तो उसके जो नियम है ना, जो डोर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो, भारत में भी हाँ, सूर्य है ना, पूर्व से ही निकलता है, पश्चिम से नहीं निकलता, हम्म, और ऑस्ट्रेलिया में भी ईस्ट से ही निकलता है, पश्चिम हाँ, से नहीं निकलता, सिंपल है। जी, सो बेस्ड नाउ ऑन दैट सम पीपल से, बिकॉज इंडिया में उसके लिए साउथ नॉर्थ फेसिंग अच्छे हाउस। होते हैं, क्योंकि हिमालय हैं, कभी चाइना ने अटैक नहीं किया, अभी इतने बार तो अटैक किया है। हाँ, नहीं, वो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। व्हाट हैपेंस इज सम पीपल और सम जो वास्तु अपने आप को वास्तु एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि बिकॉज यू आर इन द सदर्न हेमिस्फीयर द डायरेक्शन रूल्स डजंट अप्लाई अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र। तो दैट्स अगेन थैंक्स फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन दैट व्हाट वन, इज क्योंकि दिशा वास्तु तो दिशा शास्त्र? ही है जो, ना। हाँ वही ना, वास्तु हाँ, शास्त्र का है बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी, जो 5 एनर्जी। एलिमेंट है ना, 5 एलिमेंट हम्म, उसको बैलेंस करने का। वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी रूल हाँ, सेम होगा, इंडिया हाँ, में भी सेम होगा, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम होगा, नहीं, इवन सही ऑन बात है। नॉर्थ पोल भी सेम होगा, साउथ पोल में भी सेम होगा। नोबडी बाइज द हाउस देयर बिकॉज इट्स, नो। हाँ। थैंक यू। Yes. So that is the question I had from the audience. अगर आपको और भी कोई सवाल है किसी को, and we are ending the session, तो अगर आपको कुछ बाद में याद आता है तो please write to us. We'll certainly get back to you. We'll certainly answer you. महेश जी बहुत अच्छे से सब explain करते हैं, मैं उन्हीं से सीखी हूँ। बहुत अच्छा। तो जी, Pandit ji, probably you wanna just show your website page, Sure. Let me just just show to you. just to show those Just, viewers. just show Um, you the viewers. So I will show very quickly here. I'm going to present my हाँ, screen, and I'm स्नेहल जी, going आप to पंडित जाना जी, चाहते use. हो? हाँ, हमें क्षमा करिएगा, हमें हाँ जाना जी, पड़ेगा हाँ क्योंकि जी। कहीं पहुंचना है। तो थैंक यू So सो मैं मच यहाँ फॉर पे, योर वेलकम जी, इन्फॉर्मेशन। thank you वेलकम for जी। joining, स्नेहल जी। सो आप देखोगे ना, तो मैं पंचांग.com पे आप जाओगे ना, सो यू विल सी, तो मैं समामिश में रहता हूँ, वॉशिंगटन, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसके हिसाब से उसने ले लिया। अभी मुझे पूरे साल का देखना है, मैं मार्च में जाऊंगा ना, तो मार्च में भी ये कहता है 8 तारीख को महाशिवरात्रि, बट लेट्स मी चेंज द कंट्री, लेट्स सी। मैं इंडिया में हूँ, और लेट्स मेरा जो बेटी या बेटा मेलबॉर्न में रहता है, तो मुझे मेलबॉर्न के लिए देखना है ना, तो मेलबॉर्न टाइप कर दिया है मैं, तो ये आ गया, तो उसके हिसाब से वो उसने ले लिया मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया। तो क्या डेट बता दिया? 9 तारीख। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इस ब्लॉक में क्लिक करो, तो पूरा पंचांग आपको डिटेल में आ जाएगा। अगर आपको मोबाइल पे हो तो m.mypanchang.com पे जाइए। सो वेल HTTPS। सो ये आ गया m.mypanchang.com। यू कैन यूज सिंपल HTTP। सो उसने भी ऑटोमेटिक लोकेशन ले लिया। अगर आपको
उसमें ये अगर वो चाहिए ना, तो आप उसमें भी आप चेंज कर सकते हो। इसके अंदर भी आप लोकेशन आपका चेंज कर सकते हो। आप पंचांगम में जाकर आप उसमें है ना, आप यहाँ पे जाके वो कर सकते हो इसके अंदर। तो एक मिनट, मैं उसको थोड़ा बड़ा स्क्रीन कर देता हूँ तो लोगों को दिखाने के लिए। तो इसके अंदर आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हो इसके अंदर। इट्स वेरी इजी। सो ऑटोमेटिक लोकेशन सेंसिंग हो ही जाएगा। अगर आपको कुछ बेसिक चाहिए कि आ गया, आपको सब चाहिए तो पूरा डिटेल में आ जाएगा। ताराबलम, वो सब, डेली होरा का क्या टाइम है, आपको डेली लग्न का टाइम भी क्या है क्या नहीं है, पूरा अंदर आ जाएगा। और प्रिडिक्शन फॉर 12 राशिस फॉर एवरी डे, पूरा का पूरा डिटेल है। आप फिर इसके अंदर जो आप गुजरात के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर चौगड़िया होता है वो भी आएगा, डे चौगड़िया, नाइट चौगड़िया। अगर आप साउथ में हो, जैसे हमारे साईं जी है ना, तो उसके हिसाब से गौरी पंचांग यूज करते हैं, तो वो गौरी पंचांग भी आ जाएगा उसके अंदर। तो पूरा का पूरा डिटेल इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे एक हैमबर्गर मेन्यू है, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो वो मेन्यू आपको नहीं दिखा रहा है। लोकेशन चेंज करना है तो वो हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक कीजिए तो वो आ जाएगा अंदर। ये देखो, ये रहा हैमबर्गर मेन्यू। तो मैं उसको इसके ऊपर से मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, यू कैन सी। मैं चेंज लोकेशन में जा सकता हूँ दिस। सो आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा कंट्री चाहिए। तो आपको ऑस्ट्रेलिया जो भी चाहिए वो कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया। तो उसके ऊपर से आप सिलेक्ट कर लो क्या चाहिए, एडिलेड, ब्रिस्बेन, पर्थ, लाइक बेसिकली। सो मैं मेलबोर्न सिलेक्ट करता हूँ और सेव एज अ डिफ़ॉल्ट करता हूँ। तो मैं नेक्स्ट टाइम पंचांग आएगा मेरा, तो देखो इसमें आएगा मेलबोर्न, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। यू कैन शेयर इट। और आप उसमें से आपको राहु कालम वो की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन राहु कालम यमगंडम। इफ यू वांट सन एंड मून, सूर्य की राशि और चंद्र की राशि चाहिए ना, तो वो सब इसमें आ जाएगा। सन, मून, ये सब आ जाएगा। अगर आपको तारा बलम चेक करना है, मतलब मुहूर्त देखना है, सपोज मेरा नक्षत्र मघा नक्षत्र है, तो आज का दिन मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, तो मैं देखूंगा तो उसका तारा बल आ जाएगा। गुड तारा बलम, आश्लेषा, तो मघा नहीं है उसके अंदर, तो मेरे लिए अच्छा नहीं है आज सुबह में। मतलब अगले दिन रात को 2:03 43 तक, उसके बाद में अच्छा है। फिर चंद्रबलम जो मुहूर्त के लिए सिंपल, वो मेरा सिंह राशि है। तो हाँ, तारा बलम नहीं है मगर चंद्रबलम है। मगर ये कौन सा पक्ष है, हम हमारा पुष्य कृष्ण पक्ष है और अमावस्या तिथि है यहाँ पे। तो अमावस्या में तो वैसे भी रिक्ता, वो उसको तो वर्ज करनी चाहिए। अमावस्या, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, 3 तिथियों को अवॉइड करना चाहिए। और चतुर्दशी, नवमी और चतुर्दशी, वो दोनों पक्ष की अवॉइड करनी चाहिए। तो लोग कहते हैं आज तो गणेश चौथ है, अच्छा दिन है ना, मगर वो रिक्ता तिथि है, आप क्यों नहीं देखते, राइट? सो सिंपल एज दैट। सो मुहूर्त के हिसाब से ये है। फिर ये तारा बलम, चंद्र बलम आ गया। फिर हमें गौरी पंचांग चाहिए। अगर नॉर्थ इंडियन है तो चौगड़िया आ जाएगा। अगर गौरी पंचांग चाहिए तो ये आएगा। अगर आपको लगना चाहिए, क्या, देखो लग्न प्रवेश है सुबह में 6:44 से 7:17 तक। फिर बाद में कुंभ आएगा, फिर बाद में मीन आएगा, फिर मेष आएगा। ये मेलबोर्न का है। मतलब आप लोगों का ये मेलबोर्न है ना, तो अमावस्या आज है, मतलब आप लोगों की नवरात्रि कल से शुरू होगी। आज जो आपकी संडे से शुरू होगी, जो माघ नवरात्रि होती है ना, वो संडे से शुरू होगी। हमारे यहाँ आज से शुरू हो गई है, क्योंकि कल फ्राइडे को अमावस्या थी। समझ गए? तो उसके हिसाब से है। सो दिस इज द वन। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर, यू कैन गो हियर एंड यू कैन लुक एट द डेली हॉरोस्कोप, लर्न पंचांगम। आप जा सकते हो, उसमें जाके पूरा डिटेल दिया है, मुहूर्त कैसे निकालने का, सब पूरा डिटेल है इसके अंदर। थोड़े आर्टिकल्स भी हैं, couple of articles, but if you go to the main site, there are many articles here. If you go to, then you can go on articles page, तो उसमें आपको मिल जाएगा आर्टिकल्स, सारा का सारा पेज मिल जाएगा आर्टिकल्स का।
तो लेट्स सी आर्टिकल्स में सारे के काफ़ी हैं, तो पूरे के पूरे हैं, इसके अंदर बेसिक्स ऑफ पूजा कैसे होती हैं, वो सब हैं। अगर आपको ये भी जानना है ना इसके अंदर, आपका न्यूमरोलॉजी का भी है, फेस्टिवल्स जानना है ना कि देखो भाई क्या-क्या फेस्टिवल्स हैं, तो आप इधर जा सकते हो यहाँ पे नॉर्थ, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, फिजी, तो पूरा आपको टेबल मिल जाएगा यहाँ पे। सारे पूरे साल का फेस्टिवल का टेबल मिल जाएगा आपको यहाँ पे कि इसमें सारे का ऊपर डाला है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, डार्विन, साउथ ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, ब्रिस्बेन, फिजी, नाडी, पूरा का पूरा सब मैंने इधर डेट डाला हुआ है, पूरा का पूरा। इफ यू वांट टू गेट स्पेसिफिक लाइक महाशिवरात्रि पूजा डेट एंड, तो आप इसमें जा सकते हो तो पूरा आएगा। तो मेरे लिए समामिश से है ना, तो मेरे लिए समामिश का मुहूर्त दिखा रहा है। मगर आप मेलबोर्न डालोगे ना, चलो उसके अंदर, तो मेलबोर्न डालोगे तो आप आपका मेलबोर्न का भी आ जाएगा अंदर। अगर आपको इक्लिप्स देखना है ना कि इक्लिप्स विजिबल है कि नहीं, तो mypanchang.com पे जाइए, इक्लिप्सिस डालिए ऊपर, तो आप इक्लिप्सिस में आपको पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि सूर्य ग्रहण चाहिए कि चंद्र ग्रहण चाहिए। तो सूर्य ग्रहण को आप चलो देखते हैं ना, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है ना, विल बी डूइंग सेपरेट स्ट्रीम, तो वो टाइम भी दिखाएगा, वेद भी दिखाएगा क्या टाइम से फास्टिंग बिगिन होगा आपका, और किस किस नक्षत्र के लिए अच्छा है ये सूर्य ग्रहण, और किस किस के लिए बुरा है, वो पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा किस राशि के लिए। सेम गोस विद द चंद्र ग्रहण ऑल्सो। सो you can go to mypanchang.com/eclipses for eclipse related information. For चंद्र ग्रहण के लिए भी आ जाएगा आपका, ये पेन्यूमरल है तो मतलब चिंता करने की जरूरत। फॉर पार्शियल लूनर इक्लिप्स है तो आएगा उसमें, इसमें भी लिखा है वेदा बिगन्स 4 hours बिफोर द टाइम, तो पूरा उसमें सब आएगा तिथि। आप लोगों के व्यूअर्स के साथ में ये भी शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो कॉपी करके इसमें से, भाई ये लोगों के लिए अच्छा है। आप लोगों को अगर कुछ करवाना है तो जैसे रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ, जो भी है आप लोगों को जो योग्य लगे, जो परिहार हैं, आप उन लोगों को बोल सकते हो। तो विच इज रियली गुड, यू कैन mypanchang.com, यू विल फाइंड एवरीथिंग। अब पंडित जी, एक मेरा फाइनल क्वेश्चन है या फाइनल बात है इस पर कि कभी-कभी लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई हाउ डू वी नो, लाइक हम आप लोग ये जो यूज़ करते हैं माय पंचांग और तो ऑनलाइन है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन पंचांग होता है वो भी एक्लिप्स का इंफॉर्मेशन यही डाटा यूज़ करते हैं जो डाटा आप लोग यूज़ करते हैं, तो मैं भी ऐसा ही कुछ लगभग में होता हाँ, है ना? सो जो इंडिया में जो पंचांग होता है ना, सूर्य सिद्धांत, इफ दे लाइक, आई एम वेरी प्राउड ऑफ अवर एंशिएंट इंडियन हेरिटेज, सो लेट मी टेल यू। So our calculations and Surya Siddhant jo calculation, it's off by sometimes a couple of hours because of the elliptical orbit. Like in terms of degrees is not much. Okay, so let me tell you this. But if they calculate the grahan, it will be off because India was attacked by many people multiple times. Okay, so the our ancient books on Surya Siddhanta have been burned. So the अभी आजकल जो है ना उनके पास जो बीज संस्कार जो होते हैं ना, सूक्ष्म बीज संस्कार, वो अवेलेबल नहीं है उनके पास। जयपुर में एक लेबोरेटरी है जिन्होंने, जो महाराजा ने किया था, जो बड़ा सन डायल भी है वहां पे आप देखोगे ना, तो राजस्थान में है कहीं पे, तो उन्होंने किया था। मगर अभी वो बीज संस्कार इस्तेमाल नहीं होते, तो इट बिकम्स इनएक्यूरेट। इफ यू यूज बीज संस्कार, then Surya Siddhantam will be as accurate as we use Drig Ganita or Thiru Ganita, what we call it, based on that calculation. So, uh, they copy the eclipse prediction, from जाते गवर्नमेंट का जो है ना इक्लिप्स, या तो टाइम डेट जो भी है अलग अलग वेबसाइट से वो लोग डाल देते हैं। दे यूज द सेम मॉडर्न कैलकुलेशन दैट वी यूज। हाँ। Our thing is we calculate it, we do not copy it, to be honest with you. So they copy from somewhere else. So that's the thing.
So I think bottom line. Maheshji, Vishalji is saying that, whoever sits and calculates Panchang in India also follows probably the same rules that you follow while making the Panchang for the location that you are in. That's is that right? Is that's the clarity you want to bring to the viewers, that the source of the calculation is the same, but since the location is different, the calculations will be different. Well, source could Mm, be different because there are Vakyam, which is used in Tamil Nadu, which is Sarpa Panchangam is based. Vakyam means sentence. Pura Panchang ek Vakya mein hota hai, which is not possible because according to the Brown's theory, for the moon's calculation require 350 pages of spherical trigonomic corrections. Okay, that is not possible in Vakyam. सूर्य सिद्धांत में भी 350 पेज का करेक्शन नहीं है. जो बीज संस्कार हम जिसको कहते हैं ना, वो भी नहीं है. और तीसरा है दृक गणिता बेस, सो विच इज माय पंचांगम, जन्मभूमि पंचांग है, संदेश पंचांग है, काल निर्णय निर्णय सागर है, काल निर्णय निर्णय. सागर, वो सब है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पंचांग है, वो सब राष्ट्रीय दृक गणित पंचांग. बेस है, राष्ट्रीय पंचांग. और बाकी के जो सूर्य सिद्धांत बेस है, दैट वोट सम इनएक्यूरेसी. सो वो लोग तिथि तो दिखाते हैं जो हमसे मैच नहीं होती, जो दृक गणित बेस से, मगर वो लोग इक्लिप्स दिखाते वो मैच करते. क्यों? बिकॉज दे कॉपी इट फ्रॉम द राष्ट्रीय पंचांग बेसिकली. अदरवाइज अगर इक्लिप्स का टाइम रॉन्ग लिख देंगे तो ग्रहण निकल जाएगा, तब बाद में निकल जाएगा, ताकेंगे तभी ऊपर. वो बाद में ताकेंगे ऊपर. सो दैट इज ओनली थिंग. नाउ दे माइट बी यूजिंग डिफरेंट थिंग, आई हैव नो आइडिया. सो अच्छा. यस, सो आई ना, थिंक दैट्स मेरे के बहुत अच्छा, इतना इंफॉर्मेशन इज इनफ. और बहुत अच्छा लगा. और थैंक्स मेरे ओर से पंडित जी, आपको और श्रुति, और ओके जुटने के लिए. जी. तो आज का लाइव स्ट्रीम यहीं पे खत्म करते हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. अगर आपके कोई सवाल है तो माय पंचांग के कॉन्टैक्ट पेज पे जाके हमें ज़रूर लिखिएगा. अगली शनिवार को हम बात करेंगे शिवानुभव पे. अ, शिवा का जो रोल है महाभारत में, उसके बारे में बात करेंगे एक स्पेशल गेस्ट के साथ. तो नेक्स्ट सैटरडे हमारे साथ ज़रूर जुड़िए. थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो जरूर दीजिएगा. धन्यवाद. कमेंट ज्यादा जरूर दीजिएगा. सो दैट्स व्हाट आई वुड से. ओके, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू एवरीवन. Please like, share, comment, and definitely subscribe and share with your friends and family. That helps us to do work more. Thank you. थैंक यू.